एक्चुअली संजय सर ने लेने से मना कर दिया था. मेरा ऑडिशन सीक्रेट में हुआ था. वो किरदार मैं नहीं हूँ, ये मैं बार बार कहता हूँ. Someone had suggested me on Insta, DM किया था उन्होंने और ये बोला था कि सर आप अपना नाम चेंज करके रोजेश रख लीजिए. Hello and welcome. You're watching India.com Z Media and this is Tanya Garg. And well, आज हमारे साथ एक बड़ी प्यारी सी स्टारकास्ट मौजूद है. Thank you so much for joining us. Thank you. First of all, congratulations on Binny and family. The love that is coming, it's absolutely beautiful. And even I watched the film and I was like, I wish मैं अपनी family के साथ जाती. But now that's gonna happen. I'm gonna take my family along with me and I'm gonna watch it. Thank you. So you know, I want to ask you कि जब आप this is to all of you कि जब आप लोग ये film shoot कर रहे थे और when you went to watch the film with your families, तो कभी ऐसा कोई मोमेंट आया दैट यू रियलाइज कि शायद मेरी एक अप्रोच गलत थी, यू नो, विद यू लाइक विद योर किड्स एंड विद यू फॉर योर पेरेंट्स, कि आपको लगा शायद मैं ये चीज उनके नजरिए से नहीं देख रही थी या देख रहा था. सो व्हाइल यू वर डूइंग द फिल्म, क्या वो चीज चेंज हुई आप लोगों के लिए? नहीं, हमारी तो चेंज हो गई. पहले बताइए आपके अंदर क्या बदलाव है? ऑफ कोर्स आई अंडरस्टैंड कि कम्युनिकेशन, क्या क्या कमी महसूस हुई? कम्युनिकेशन ऑफ कोर्स दैट इज नेसेसरी, इवन दो इट माइट बी अनोइंग सम टाइम, बट आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट. So that I have realized. And relation with the grandparents? Oh, that has always been, that would been really nice. अच्छा. So, हाँ. मम्मी पापा के साथ? That is nice. But अब in fact parents साथ अच्छा grandparents के साथ रहा Exactly, यही है. जवाब है हमारा. Very smart. No, it's because whatever you said, that's what the film dealt. उसको अलग-अलग शब्दों से भी हम एक ही बात कह रहे हैं. हाँ. कि वो कम्युनिकेशन गैप की वजह से जनरेशन गैप है. इन सारी चीज़ों का हम ख्याल रख रहे हैं कि आज अपने परिवार के साथ जब आप हैं तो ऐसी कोई गलती ना हो जिसकी वजह से you land up into that gap becomes big, you know, so you have to minimize the gap and that's what this film tells us and this is what apparently we all have learned. इन्होंने तो लिखी है क्योंकि इन्होंने महसूस किया है, एक्सपीरियंस किया है, तो उनमें तो सुधार आ चुका है. मैंने बनाने से पहले ही महसूस कर लिया. देखने के बाद महसूस करने की जरूरत नहीं, मुझे पहले ही पता चल गया क्या करेक्शन की जरूरत है. Right. You know, reception has been so nice that ये बातें हो रही हैं that Tamil and Telugu में ये फिल्म होगी. Yes. So how is the feeling? मतलब ये सुन के what is the mood like currently? Very exciting. That the subject is universal. Yeah. चाहे आप तमिल में हो बोले वही बात है, चाहे आप तेलुगु में बोले वही बात है, हिंदी में बोले वही बात है, क्योंकि फैमिली मूलतः और उसका जो अपना एक उसकी जो बुनियाद है वो लगभग हर परिवार में एक ही है, हर घर की एक ही कहानी है और उसी को आप अलग अलग भाषा में कह लीजिए, बट आई थिंक द बेस इज दैट यू हैव टू हैव अ स्ट्रॉन्ग फैमिली. In fact, now there are talks of the film also having an international release because that's how universal we feel that this message actually is, the subject matter actually is, and I think that every culture would enjoy this and be able to relate to this. Not just Indian cultures abroad, but every culture has. Right. Families Do you think someday. कि you all are ready to make your South debut? मतलब अगर ये possibility हुई, Binny and family, all of you. आमड़ितने अलग नाम What he said. That would be fun. You just have to say one word and rest you just do it. आमड़ितने I'm ready. Ready. That would be fun. राजेश सर, आपसे पूछना चाहूंगी, you know, you mentioned about a particular phase in your life. But even though there has been so much love coming for you for the roles that you've done so far, या जो currently आप roles कर रहे हैं, do you think that you would want to go back and, you know, pursue farming again? I am already doing it. Yeah. Like full-fledged? Yeah, full-fledged. Why not? I mean, given an opportunity, definitely. But अब ये हो गया है कि इतने एक्सपीरियंस से ये समझ में आया कि बहुत सारा काम एक साथ किया जा सकता है. So that has been set on autopilot as of now. थोड़े उड़ान थामेगी, फिर जब उसको और हाइट पे लेके जाना होगा, then I'll jump back into it. So balancing between both. Right. Charu ma'am, coming to you, we've seen your trajectory of the films. You've done some amazing work with Animal, Rocket Boys, and even Crew. So वो एक versatility वाला factor रहा है. I want to know, do you feel कि अब आप ऐसे मुकाम पर हैं where जब आप script देखती हैं तो आप ऐसे होती हैं, you know, this is not something that I'm on board with. I might not take it up. Like, do you think you're in a position to say no?
or do you feel that that's still a road? No, I think one is always in a position to say no. Yeah. Like, I mean, thankfully, that much empowerment to hai. Yeah. Even, and this industry is eclectic enough, Yeah. it gives the actors that kind of power. But मेरी personal philosophy life में सिंपल है. मैं अभी हम लोग यही बात कर रहे थे, तो मेरी पर्सनल फिलोसफी अब है कि मैं ना ज्यादा सोचती नहीं हूँ, बिकॉज इफ आई स्टार्ट ओवर थिंकिंग कि ये इसका नतीजा क्या होगा, तो यू गो टू मच इन द हेड and it can cause a headache. Right. So I avoid that headache. कोई भी opportunity आती है, I say yes. I say yes to it, and I genuinely believe that the universe now, I have a nice clear relationship with the universe कि what is meant for me should come to me. If it is not meant for me, वो अपने आप ही मुड़ के चले जाते हैं. बच्चन हरिवंश राय बच्चन साहब की जो लाइन है ना, जो बच्चन साहब दोहराते हैं, कौन सी कि आपके मन का हो तो अच्छा, आपके मन का ना हो तो और भी अच्छा, और भी अच्छा. तो ईश्वर के मन का हो जाता है. That's right. So that I don't even think about it now. अगर वो आता है opportunity, I say yes, and then पूरी शिद्दत से, पूरे respect के साथ उस रोल को मैं अप्रोच करती हूँ. वो जो भी रोल. Sanjay sir, correct me if I'm wrong, but I think 7 years लगे finally इस फिल्म को रिलीज होने में. तो कभी ऐसा मोमेंट आया उन 7 साल में, या while you were, मतलब जब वो बैक एंड फोर्थ हो रहा था कि what if नहीं हो पाया रिलीज, और मे बी वो OTT वाला हमें रिलीज करना पड़ा, were there moments like that? ऐसा कभी डर रहा? बिल्कुल रहा. फिल्म मेकर हमेशा बहुत इनसिक्योर होता है अपने सब्जेक्ट्स को लेकर, अपनी कहानियों को लेकर. पहले तो वो कहानी एक थॉट होता है, उसको फिर आप कहानी में बदलते हैं, फिर वो कहानी आप एक प्रोड्यूसर के पास ले जाते हैं, फिर प्रोड्यूसर से वो सारा सेटअप बनता है, फिर वहाँ से वो फिल्म स्क्रीन तक पहुँचती है. फिर आजकल एक ट्रेंड चला यूनिवर्सिटी कह रहा हूँ, इंडस्ट्री में, कि भाई स्लाइस ऑफ लाइफ फिल्में नहीं, लार्जर देन लाइफ फिल्में होनी चाहिए. तो जब आपको ऐसे सब्जेक्ट्स लेके आते हैं तो आपको एक रेजिस्टेंस फील होता है. तो फिर एक प्रोसेस होता है. जैसे कई लोग कहते हैं कि चलो 10 आदमी नहीं बचा, 11वां आदमी कोई मिलेगा जिसको लगेगा कि हाँ यार सब्जेक्ट पे फिल्म बननी चाहिए. तो वो इस तरह के प्रोसेस, इस तरह के जर्नी से रहा. फिर बीच में कोविड आया, तो उसने अपना टाइम लिया. फिर उसके बाद वीज़ा प्रॉब्लम्स हुए, उसने अपना टाइम लिया. फिर हमने किसी तरह से फिल्म को पूरा किया अगेंस्ट ऑल ऑड्स. बट थैंक्स टू ऑल द एक्टर्स, हमें जो भी प्रॉब्लम्स होती थी सेट पे या कहीं भी, केप्ट बाय देयर परफॉर्मेंस. अगर हमें शूटिंग 1 घंटा लेट भी होता था तो इनके परफॉर्मेंस इतने सटीक होते थे कि वो हम 1 घंटा कवर कर लेते थे. सो आई थिंक एवरीबडी वाज वेरी वेल कनेक्टेड विद द फिल्म. सबका बहुत सपोर्ट था. तो कभी कोई प्रॉब्लम आई भी तो सबने सपोर्ट किया, राइट फ्रॉम पंकज जी टू राजेश, शाहरुख, अमन, एवरीवन, अंजनी. सो आई थिंक सबका सपोर्ट था, एक गुडविल था, जिसकी वजह से ये फिल्म फाइनली अपने मुकाम तक पहुंच पाई. और शायद ये वजह है कि वो प्यार मिल रहा है लोगों का. Naman, congratulations on your debut. Thank you. I want to know कि auditioning से लेकर जब आप actually set पर होते हैं, like what is that different? वो nervousness वाला factor on set पे रहने के बाद, और जब इतने experienced actors होते हैं set पे, so वो एक डर वाला factor ज़्यादा रहता है. हाँ, एक्चुअली बहुत ज़्यादा रहता है. जब हम लोग ऑडिशन कर रहे थे, मैं खुद AD भी था फिल्म पे, तो मैंने खुद बहुत सारे ऑडिशंस लिए थे. और फिर जब मैं फाइनली सिलेक्ट हुआ, बिकॉज एक्चुअली संजय सर ने लेने से मना कर दिया था. महावीर सर थे द प्रोड्यूसर ऑफ द फिल्म, हु एक्चुअली फोर्स्ड मी टू ऑडिशन. मेरा ऑडिशन सीक्रेट में हुआ था, और आई थिंक पहली बार था जो ऑडिशन डायरेक्टर को नहीं, प्रोड्यूसर को दिखाया गया था. फिर जाके उनको बोला गया था कि सर प्लीज़ देखो, कुछ ले लो. एंड आफ्टर लॉट ऑफ कन्विंसिंग ही डिड टेक इट. बट एज यू सेड, जब हम लोग शूटिंग के लिए गए, मैं जब रिहर्सल्स करता था, जब मैं वर्कशॉप्स करता था, आई रियलाइज कि मैं बहुत ओवरथिंक करता था. मैं बहुत ऐसा होना चाहिए, परफॉर्मेंस लगता था. फिर अब व्हाट हैपेंड फॉर्चुनेटली एंड अनफॉर्चुनेटली वाज कि हमारे कोई भी असिस्टेंट्स का वीज़ा नहीं लगा. नो ADs केम टू शूट दिस फिल्म इन लंदन. तो मैं AD भी था उधर. तो जब उधर उतना चल रहा है ना, ओके सेट अप द शॉट, ये उसके बाद जाके आपको ही शॉट देना है. तो आपको यू डोंट गेट द टाइम टू थिंक. एंड दैट वाज अ ब्लेसिंग फॉर मी कि आई एम नॉट थिंकिंग मच. क्या है, मैं कैरेक्टर में घुस गया हूँ, मैं बस कर रहा हूँ. सो दैट्स व्हाई नाउ व्हेन दे से नेचुरल था, इट्स लाइक सो नेचुरल.
नेचुरल होना ही पड़े, प्रिपरेशन की ही नहीं मैंने. In the Binion family, he had a true double role because he was Yeah. jumping Triple On role, camera, on camera, yeah. off camera, and then writing also, not making all those dialogue changes and all. He was really full on. But I think you were absolutely He great. was actually he was sick. Yeah, he's I was sick. sick, dude. I was He was sick. sick. He was Sick. All right. Rajesh, sir, coming back to you, I feel that it'll be criminal of me if I don't ask you about Sarabhai versus Sarabhai and talk about my personal favorite also, You can be Rosesh. criminal if you are asking. But I think that I am fine with that as of now. Sir, I want to know कि जब इतना प्यार मिला है generation to generation, Rosesh has ये lived हर with us. generation कुछ Yes, कहता yes. So Rosesh has lived with us, right? So I want to know कि अब इतने साल बाद, are you ready to let go of Rosesh, or do you want? I have already let go. People are not letting People go. are not letting go. वो जो Yeah, चीज yeah, है, do you, मतलब, are you happy with that kind of feeling? If See, people, it has driven my career. I mean, it has definitely given me the positioning what I have today, or the recognition which an actor always looks out for. तो वो definitely उस किरदार से मिला, लेकिन वो किरदार मैं नहीं हूँ, ये मैं बार बार कहता हूँ. वो किरदार मैंने जिया है, वो किरदार मैंने किया है, और 20 साल पहले की बात है. बट वो है कि आप कुछ ऐसा कर जाते हैं अपनी ज़िंदगी में, या आपको ऐसा with कुछ people. मिल जाता है जो अनंत अनादि तक चलता है आपके साथ. तो अब जैसे स्वर्गीय पंकज उदास जी ने इतनी गज़लें गाई, लेकिन चिट्ठी आई है, आज तक चिट्ठी नहीं आई. So if you see that everyone is known with one thing in their life. So someone had suggested me on Insta, DM किया था उन्होंने, और ये बोला था कि सर आप अपना नाम चेंज करके रोजेश रख लीजिए. रोजेश एंड राजेश को मिला के रोजेश कर दीजिए, तो लोग को और इजी रहेगा यार. So all these things do happen, but yeah, definitely it's over with that. And अब जिस तरह के किरदार हो रहे हैं, इसमें कहीं रोसेश की छवि नहीं है. right? And before I go, I want to know, like, as actors and sir as director, you know, when we give like a slice of life type of film we present to the audience, so I want to know कि वो box office का pressure जब आता है, या you know release से पहले वाली जो वो TikTok होती है, like what is that feeling like? स्टेजेस ऑफ रिलीज होता है. सबसे पहले तो ये होता है कि भाई फ्राइडे को आपकी फिल्म रिलीज हो रही है, उस दिन हमें स्टार्स कितने मिले, हु इज टॉकिंग व्हाट, एंड हैज दिस फिल्म बीन रिसीव्ड बाय द मीडिया well, because they are the people, you know, people will be reading them. That is the first pressure, and then they will eventually see. It is also a business. Without business, तो आप definitely अगली फिल्म भी नहीं बना सकते हैं. So that also we keep in mind, but that we do not succumb to those things, because while making we are not thinking कि ये box office पे क्या इसका होगा. पहला तो आप believe और conviction से ही बनाते हैं, and then eventually अगर फिल्में जैसे लोगों को पसंद है, आज 1 महीने के बाद हम बिनियन फैमिली की बात कर रहे हैं, सो कुछ फिल्म ऐसी बनती है जो आप कभी भी आज से 5 साल के बाद अगर बात करते तो हम मिलते भी नहीं आपसे. But I think you said that sleeper hit है, तो I think I would absolutely agree. Binion family को finally उसका, you know, है ना? yes, It absolutely, is a sleeper hit. It just came in silently and and then boom. it's like, yeah. That's what our film is. I would like to- But I always knew it would be. From the day I read the script, I had a feeling. I even told Sanjay, I said, "Sir, ये film, this is going to do really well." And he said, "Acha, you know, we're making it. It's very sweet. It's very nice." I said, "No, it's really good. It's got a great core. It's got a great message." Right. And I really liked his vision from the word go. And he himself is such a soft person, and so that soft personality also comes in the way the treatment of the subject Right. is done in that sensitive way. You see, so I knew that it would be an incredible. Want to add something? या एक्चुअली फिल्म तीसरे हफ्ते में थी, और मैं अपने दादाजी के साथ गया था थिएटर में. एक थिएटर का इवनिंग शो था, वेंसडे नाइट, वीकडे. मुझे लगा 10-15 लोग होंगे. आई वेंट 80% ऑक्यूपेंसी, एंड मैं आई मेट वन वुमन. मैं बोला इंटरवल में, मैं बोला मैंने ये मूवी पिछले हफ्ते देखी थी, इस हफ्ते मैं अपनी फैमिली को लेके आई हूँ. सो दैट्स हाउ, यू नो, स्लोली क्योंकि यू नो और लोग देख रहे हैं, फिर अपनी फैमिलीज को ला रहे हैं, जैसे आपने भी अभी बोला, मैं अपनी फैमिलीज के साथ देखना चाहती हूँ. तो दैट्स हाउ इट्स बिकमिंग अ हिट, एंड ऑल क्रेडिट गोज टू महावीर सर, द प्रोड्यूसर्स एंड ऑल, जिन्होंने इतने दिनों से फॉर सो मच टाइम दे बैक द फिल्म. इट्स स्टिल इन थिएटर्स, वी आर स्टिल प्रमोटिंग.
So yeah, a sleeper hit, but It's all working. yeah. Well, on that note, congratulations Thank you. once again, and Thank I you. hope this film just keeps doing better and better. Thank you so much. Thank Thank you. you. Thank you. So sweet.